आज जो है लास्ट टाइम हम लोग ने MS वर्ड फॉर रिसर्च के बारे में देखा था. वी हैड सीन अबाउट हाउ टू create table of contents, how to create table of figures, and how to arrange the entire thesis. Basic outline मैंने बताया कि how to create document outlines and how to use formatting. Then we have seen about how to create the how to use the Mendeley software integrated with MS Word and then use it for our research. वी हैव डिस्कस वेरी बेसिक स्टेप्स. तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आफ्टर discussing about MS Word, today we will be discussing about PowerPoint. I will request all to open a default blank PowerPoint presentation. Here basically you need PowerPoint presentation to express your views related to the research. So whatever research you are doing, you have to present it in the form of PowerPoint presentation. During reviews also, 6 monthly reviews, or during DRC and RDC, you have to present yourself, and final presentation भी आपको बनाना पड़ेगा. You have to present yourself in front of the audience. So we have to use PowerPoint. So for our research purposes, we need to use PowerPoint to express our ideas. So when we start PowerPoint, we come to the Home tab. In the Home tab, all of you must be observing. Home tab में हम लोग अभी हैं. In the Home tab, we have the clipboard, we have the slide section, we have the font section, we have the paragraph, drawing, and editing. Let us briefly see what are these things. So starting with the new slide option, here we have, when we click the new slide option, we have a variety of slides that are present. So यहाँ पे say we have to insert a slide. If we click on the new slide, a new slide will be inserted. The title slide, the first slide is the title slide, second slide is the content slide. So they are a little bit different in look. So here, what we need to do is to set some basic settings, do some basic settings. For that, हम क्या करेंगे कि स्लाइड्स बनाने से पहले, जैसे अभी स्लाइड जो है डिफ़ॉल्ट स्लाइड्स दिख रहे हैं, इनको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम व्यू टैब में जाएंगे. व्यू टैब में जाने के बाद स्लाइड मास्टर पे आएंगे. सो व्यू टैब में जाने के बाद विल कम टू द स्लाइड मास्टर. व्हेन वी क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर, आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो है स्लाइड का फॉर्मेट दिया हुआ है. ये अलग अलग टाइप्स के स्लाइड्स हैं जिनके फॉर्मेटिंग दिए हुए हैं. अब यहाँ पे जनरली हमको क्या करना पड़ता है कि दैट वी हैव टू परफॉर्म सम बेसिक सेटिंग्स. से आपको कलर सेट करना है. जनरली द स्लाइड बैकग्राउंड शुड बी वाइट and the content should be black. When we are talking about PhD presentations, we don't use fancy slides because uh, that kind of a structure is not appreciated when we are representing a research. So we don't use fancy slides, fancy colors, or fancy fonts. We use some standard fonts, like Times Roman is a very standard font. So यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे मैं जिस स्लाइड को सिलेक्ट किया हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्लाइड को मैंने सिलेक्ट किया है, you can observe that this is the format of the slide, and here you can set the color. So this is the color you can set. जैसे ग्रे स्केल है और ब्लू है, ग्रीन है. तो जनरली हम ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट को ही जो है सिलेक्ट करते हैं. इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्लाइड कलर ऑप्शन. ठीक. नेक्स्ट कम्स द फॉन्ट ऑप्शन. फॉन्ट ऑप्शन में यू कैन ऑब्जर्व हियर there are various fonts. Generally, Times Roman is the standard font that we use while uh, creating the slides. So इसमें खैर फॉन्ट तो ऐसा है कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, लेकिन द बेसिक आइडिया इज दैट यू शुड चूज ए पर्टिकुलर फॉन्ट विच इज़ वेरी क्लियर.
जिसमें क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ ए फॉन्ट वी शुड ऑलवेज सिलेक्ट. So generally it is seen that Times Roman is the best kind of a font that we can have. अब यहाँ पे देखिएगा सभी स्लाइड्स में टाइम्स रोमन फॉन्ट जो है वो हेडर्स में आ चुका है. ठीक, जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे आप ऑब्जर्व करके देखेंगे. ठीक, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक सेटिंग. अब यहाँ पे एडिशनल कुछ सेटिंग्स आप कर सकते हैं, जैसे कि फुटर लिखा हुआ है. सो फुटर में आप चाहते हैं कि कुछ आप डालें, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च स्कॉलर मिस्टर एक्स वाई जेड. सो दिस इज यू वांट इन द फुटर. फिर हम जो है वी वांट दैट there should be page numbers in the footer, so that we'll see how to insert page numbers. ठीक, अब यहाँ पे ठीक, अब यहाँ पे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्लाइड के फॉर्मेट में आपका रिसर्च स्कॉलर मिस्टर एक्स वाई जेड लिखा है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है. इसमें देखिएगा फुटर वैसे का वैसे ही लिखा है. ठीक, तो हम उसको भी चेंज करते हैं, सो दैट कंसिस्टेंटली देर इज अ फुटर. सो अब हर एक टाइप के स्लाइड पे आप इंडिविजुअली फुटर्स को सेट कर सकते हैं, हेडर्स भी सेट कर सकते हैं. जैसे फुटर्स हम सेट करते हैं. सो अगर इतना सेटिंग करने के बाद अगर हम इसको क्लोज कर दें, ठीक, यू कैन ऑब्जर्व दैट अभी कोई फुटर नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे, ऑल्दो वी हैव सेट द फुटर. तो यहाँ पे हम जाएंगे व्यू में, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे. इंसर्ट में जाना है. इंसर्ट में जाने के बाद हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ये फुटर वाला जो ऑप्शन है वो अनचेक्ड है, जो अभी अपन ने सेट किया था, दैट इज अनचेक्ड. सो इसको चेक कर देंगे. चेक मार्क लगाते ही देखिएगा यहाँ पे बताएगा कि फुटर में the text will be visible. So include, you can include on the slide the date and time if you want. उसको चेक मार्क लगा सकते हैं. एंड अपडेट द डेट ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, या तो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर इसको हटा दें तो आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिक्स वाला ऑप्शन है. जिस डेट को आपने स्लाइड क्रिएट किए थे वो डेट आपको वहाँ पे हमेशा के लिए दिखेगा. फिर स्लाइड नंबर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है जिसको हमको देना पड़ता है, दैट इज नेसेसरी. So slide number and footer is one of the very important portions that we have to put in our slides. ठीक, इसमें एक और ऑप्शन आप ऑब्जर्व करेंगे, डू नॉट शो ऑन द टाइटल स्लाइड. सो दिस ऑप्शन हैज टू बी चेक्ड बिकॉज वी डू नॉट पुट पेज नंबर स्लाइड नंबर्स ऑन द टाइटल स्लाइड. तो टाइटल स्लाइड में नहीं होगा. ठीक, एंड नोट्स और हैंडआउट्स के ये ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे ऊपर में, नोट्स एंड हैंडआउट्स का एक टैब है. सो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपका नोट्स और हैंडआउट्स जो बनते हैं, या आप प्रिंट आउट जब निकालेंगे तो उसमें भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं, फुटर वगैरह, हेडर, उसके हेडर फुटर आपको क्या देना है. ठीक, तो उसकी भी सेटिंग यहीं से कर सकते हैं. अभी फिलहाल के लिए हमने जो सेटिंग किया है स्लाइड नंबर एंड फुटर वी हैव पुट, एंड वी डोंट वांट द फुटर टू बी विजिबल इन द टाइटल स्लाइड. अप्लाई कर देंगे, अप्लाई टू ऑल कर देंगे. सो अप्लाई टू ऑल करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहला जो स्लाइड है, आप देखिए मेरा पहला स्लाइड सिलेक्टेड है, दिस इज द टाइटल स्लाइड एंड दिस इज नॉट हैविंग द फुटर. लेकिन जैसे आप सेकंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे देखिएगा ये रिसर्च स्कॉलर मिस्टर एक्स वाई जेड आ गया. ठीक, सो आप जितने भी स्लाइड्स इंसर्ट करते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक और स्लाइड इंसर्ट करा रहा हूँ, न्यू स्लाइड, a blank slide I am going to insert. There also you will find that there is a footer there. आप कोई भी जैसे कुछ मल्टीमीडिया कंटेंट वाला आपको स्लाइड इंसर्ट कराना है, देन ऑल्सो द फुटर इज अवेलेबल. ठीक, तो इस टाइप से आप जो है दे सकते हैं. ठीक, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट यू विल बी डूइंग व्हेन यू विल बी क्रिएटिंग द स्लाइड्स. अब स्लाइड्स में क्रिएशन करते वक्त ये तो मैंने बेसिक आइडिया बताया कि कैसे करके आप मास्टर स्लाइड को भी यूज कर सकते हैं for doing some basic changes to the entire content of the slide, that is the um, font setting and color settings. वो basic settings होता है. अब यहाँ पे हम जो है
कुछ टाइप करते हैं जैसे प्रेजेंटेशन, PhD presentation. And in the title, we have to specify the scholar name, research scholar, Mr. XYZ. There you have to put the roll number also. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें रोल नंबर देना पड़ता है, या एनरोलमेंट नंबर भी साथ में आप दे सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको जो है, नाउ पॉइंट ये क्या होता है कि यू विल बी डूइंग ए प्रेजेंटेशन वेयर यू आर बीइंग गाइडेड बाय योर गाइड एंड को गाइड. सो जब आप इसकी सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास एक ही जगह है जहाँ पे आप रिसर्च स्कॉलर का नेम दे सकते हैं. सो अब इसको हमको करना ये है कि वी हैव टू पुट द नेम ऑफ द गाइड एज वेल एज को गाइड. सो हम क्या करेंगे कि आप चाहे तो इंसर्ट पे जाके, शेप्स पे जाके आप जो है यू कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स. सो हियर वी कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इफ यू वांट. ठीक, या तो ये जो पड़ा हुआ टेक्स्ट बॉक्स है दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल विद अस, इसको आप क्लिक करके, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और यहीं पे आप उसको पेस्ट भी कर दीजिए. सो नाउ यू हैव द कॉपी ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर. सो अभी इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं जो है आई विल अलाइन इट एंड से यहाँ पे हम लिख देंगे गाइड डॉक्टर ABC and affiliation. So our guide, whoever is our guide, it may be co-guide, there may be co-guide in your or this is actually a supervisor बोलते हैं, guide नहीं बोलते, supervisor बोलेंगे, because supervisor will only supervise your work. Guide actually क्या होता है, will guide through the entire work. तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है. In CSV2 it is not guide, it is supervisor. So the supervisor is not responsible for guiding you throughout the each and every step of research. The guide, the supervisor, is only responsible for ensuring that you are doing all the things according to the rules and regulations, and the research is going in right direction. That's all. So अब यहाँ पे जैसे आप सुपरवाइजर, आपको को सुपरवाइजर बनाना है तो इसको भी आप राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे अपन ने इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया है टेक्स्ट बॉक्स पे, और कंट्रोल की दबाते हुए उसको खींचते हैं, अगर ड्रैग करते हैं और माउस बटन को छोड़ देते हैं, अगर अभी कंट्रोल की दबाई हुआ है, माउस बटन मैंने छोड़ दिया है और कंट्रोल की को अभी मैंने छोड़ दिया है. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट इस टाइप से भी आप डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं. सो इस चीज को मैं फिर से करके बता देता हूँ कि हमने क्लिक किया, पहले तो ये टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया, उसके बाद फिर सॉरी कंट्रोल बटन क्लिक किया. देखिए कंट्रोल बटन क्लिक करते साथ ही जो है जो उसका माउस पॉइंटर है इट गेट्स चेंज. So we will press the control button and left mouse click and we'll drag it whenever, whichever position we want it to be there. Then we will release the left button. We will keep on pressing the control key. कंट्रोल की दबा हुआ रहना चाहिए और माउस के लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देंगे. सो एज सुन एज वी रिलीज द माउस क्लिक द डुप्लीकेट कॉपी गेट्स क्रिएटेड. यहाँ पे आप को सुपरवाइजर का नेम वगैरह ले सकते हैं. दिस इज द को सुपरवाइजर पार्ट. ठीक, and name can be anything, say 123. So this is how you have to create your title slide. This is a very basic way of creating the title slide, where this represents the title of the PhD, title of the PhD work. Here it will should reflect the title of the PhD work, and the other portions below will be representing the research scholar name along with the roll number and enrollment number. ये enrollment number आपके पास हमेशा होगा, इसको भी जरूर डालें, अच्छा रहता है. It's a good practice. And also here you can put the name of uh, the college to which you belong to, उस पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है.
सर अभी तो रोल हमारे नंबर पास एंड कुछ एनरोलमेंट नहीं है। नंबर ही। जी। सर अभी तो हम लोग के पास रोल नंबर ही है, बस इनरोल और एक वो स्लिप है। और तो कोई डॉक्यूमेंट आई कार्ड वाई कार्ड कुछ नहीं है। हाँ, आपका एनरोलमेंट अभी होगा तो उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। फॉर्म तो सब भर दिए सर। अच्छा, फिर आपको मिल जाना चाहिए, आपको एनरोलमेंट नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। केवल बोला रसीद पैसा जमा कर दो, और तो कुछ दिया नहीं, केवल रसीद है मेरे पास। और आपने जो हम्म। रोल नंबर बताया है 23 रोल नंबर, बस वही है डिटेल, और कोई डिटेल है ही नहीं तो मेरे पास। नहीं नहीं, रोल नंबर जो मैंने बताया है दैट इज योर क्लास रोल नंबर। दिस इज दिस रोल नंबर यू हैव टू पुट यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो सर हम लोग ने जो अभी सिलेबस भेजा है उसमें तो हम लोगों ने अपना क्लास रोल नंबर ही लिख के भेजा है 23। और तो हमें इनरोलमेंट नंबर कुछ पता ही नहीं है, ना हमें कोई हाँ, कागज दिया ये गया। इंफॉर्मेशन जो है आपको अपने यूनिवर्सिटी से मांगना पड़ेगा। वो आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगा। और आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिस यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर यू हैव टू पुट इट इन योर थीसिस। तो इसकी ज़रूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके पास होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी से आप जो है रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं, आपको अवेलेबल करा देंगे। या तो आपका जो रिजल्ट आता है उसमें आपने अ, अभी जैसे एग्ज़ाम आपने दिया था ना। अ, हाँ। नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि अभी एंट्रेंस एग्जाम दिया था और इंटरव्यू दिया था, और तो कुछ उस, दिया नहीं उस था। हाँ, तो एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को कोई रोल नंबर अलॉट हुआ था क्या? सर एक वो इनरोलमेंट नंबर था, लेकिन वो तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए था, पीएचडी में एडमिशन के बाद का तो नहीं था। नहीं, जैसे रिजल्ट डिस्प्ले हुआ था तो उसमें रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर वगैरह लिखा था क्या? नहीं, नेम के यूनिवर्सिटी रोल पहले? नंबर नहीं लिखा था, केवल वही जो हम लोग के एडमिट कार्ड पे रोल नंबर था ना, हम्म। इनरोलमेंट नंबर वही वही लिखा हुआ था, और तो कुछ लिखा नहीं है हमारा। अच्छा, तो आप जो है यूनिवर्सिटी से एक बार पूछ लें कि एनरोलमेंट नंबर कब अलॉट होगा आप लोग को। सर सर हम लोग का अभी डीआरसी ही नहीं हुआ है, अच्छा। इसीलिए शायद एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है। हाँ, मे बी हाँ, दैट मे क्योंकि बी द वो रीजन। होने के बाद ही मिलेगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक, वो भी जी। सही है। हाँ। सर अभी यूनिवर्सिटी से मैसेज आएगा ना वहाँ, तब इनरोलमेंट के लिए फॉर्म भरवाएंगे सर, इसके बाद ही स्टार्ट होगा अपने लिए हाँ एडमिशन। सर वो इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया था उसमें एक रोल नंबर था, मतलब ऐसे नॉर्मल हम्म। जनरल 21 20 ऐसा। हाँ, वो एक्चुअल रोल नंबर नहीं है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको अलॉट होगा, एनरोलमेंट नंबर भी अलॉट होगा। जी अभी जी। इनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे सर, इसके बाद ही आएगा वो तो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ये फॉर्म कहाँ ठीक। मिलेगा सर, बीआईटी में, क्या मैं वहां जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी? वो ऑनलाइन सर, वे हाँ, डेट आएगी उसकी नहीं बताएंगे यहाँ से, तो फिर ऑनलाइन भरना पड़ेगा अपने को। ऑनलाइन भरना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नोटिस में तो कोई अभी क्लियरिटी है ही नहीं, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी डेट नहीं आया ना सर उसका, इसलिए कुछ नहीं बता रहे हैं, जैसे डेट आएगा तो हाँ बताया हाँ, जाएगा। उसमें ओके ना ओके आपको पूरा ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा ना, आपके ईमेल आईडी में भी इन्फॉर्मेशन आएगा। और अपने कॉलेज से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो आपका सर हमें रिसर्च सेंटर। हाँ। स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है ना, तो जब तक हमारे पास कोई पेपर है, एडमिशन लेटर वेटर कुछ है ही नहीं, हम्म। तो आर्ट वर्क कार्ड नहीं, तो हम कैसे यूजीसी में जाके स्कॉलरशिप अप्लाई करें? हाँ, हम तो वो नहीं उसके होगा, लिए वो अभी नहीं एलिजिबल होगा। हैं। हाँ, सही है। डिफेंस बिना बिना डिफेंस रोल वाले नंबर एलिजिबल होते यूनिवर्सिटी हैं। एनरोलमेंट नंबर के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना हमारे पास एडमिशन लेटर है कि हमें एडमिशन लेटर दिया गया, भरवा लिया गया सब कुछ, डॉक्यूमेंट हम्म। ले लिए, लेकिन दिया कुछ नहीं है एक भी वो चीज। मिलेगा, मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए, वैसे मिल जाएगा, है ना। तो वो उसकी क्या डेट कि निकल अब जाएगी ना स्कॉलरशिप की, सर स्कॉलरशिप की अ, डेट अगले हाँ, तो महीने लास्ट अगर है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन, स्पेशल कुछ कंडीशन है तो एक बार यूनिवर्सिटी में जाके आपको बात करना पड़ेगा, अच्छा पीएचडी सेक्शन में। हाँ, ठीक है सर। है ना। ओके तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू। लेटर इशू वगैरह कुछ करवा सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे के कुछ करके फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, सो दैट आपको उनको तो स्कॉलरशिप सब मिल पता जाए। होगा ना सर, स्कॉलरशिप बच्चे लेते हैं यूजीसी से, अलग अलग टाइप की। हाँ, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से हो सकता है कि आपको कुछ लेटर मिल जाए ना, आप एक बार जाके बात करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि सारा खेल तो स्कॉलरशिप का ही है ना सर, इतना जो पैसा हाँ। मिलेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं 10,000 की बुक है अमेजोन में, हम्म। अब उसको कैसे खरीदें 10,000 की बुक, बताइए। दो बुक हाँ बंडल में बताइए, दोनों को मिला के 20,000 रुपये होता है। अब हाँ। 20,000 रुपये हम बुक में लगा दें एक सब्जेक्ट की, तो ऐसे तो खर्चे हाँ, कहाँ से हम पूरे करेंगे सर? नहीं, वो तो खैर वही मैं कहा कि अगर स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी में बात कर लेंगे, तो दे विल हेल्प यू। कोई ओके सर। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। है ना।
चलिए, Okay. सो जैसे मैं बता रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपके स्लाइड्स का ऐसा रहता है। सो द टाइटल स्लाइड जो है इस टाइप से दिखेगा। उसके अंदर में जो कंटेंट वाला स्लाइड्स होते हैं वो आपके जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आप सेट करते हैं। जैसे ये सोच लीजिए, सेकंड स्लाइड जनरली क्या होता है, इट इज द आउटलाइन ऑफ द एंटायर रिसर्च वर्क, रिसर्च या एंटायर पीपीटी प्रेजेंटेशन. So generally it contains the this kind of a slide. इसमें कौन सा स्लाइड हम यूज कर सकते हैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? इसको ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे वाला जो स्लाइड है, जैसे इसमें प्रेजेंटेशन आउटलाइन लिखा है, तो दिस इज द प्रेजेंटेशन आउटलाइन। यहाँ पे आपको जो है डॉट अपने फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा, न्यूमेरिक फॉर्मेट में बताना पड़ेगा। सो न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपको दिखाना है तो हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद ये जो बुलेट्स है वो बुलेट्स शुड बी न्यूमेरिक। देखिए न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया है। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस न्यूमेरिक नंबर लिस्ट। सो यहाँ पे वी विल सिलेक्ट से स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, then we can come to literature survey. Then we will have the proposed methodology. Then we can have the data part which is being used for the project, for the research work. And if we have achieved some results, then experimental results. And after we have achieved the results, we have to perform some discussions related to the experimental results that we have achieved. So रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस जनरली एक साथ होता है, लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बड़े होते हैं, स्पेसिफाई करके बताना पड़ता है कुछ, तो सेपरेट स्लाइड में उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर ऑफ स्लाइड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. देन कम्स द डिस्कशंस पार्ट विच एक्सप्लेन्स व्हाट द रिजल्ट्स मीन एंड हाउ इट इज यूजफुल एंड व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिजल्ट्स, हाउ वी कैन यूज द रिजल्ट्स, उसका डिस्कशन होता है. डिस्कशन में जो है वो इसमें जो जिसको बोलते हैं कंपैरिजंस भी करते हैं हम लोग. जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ अगर जो रिजल्ट्स थे उससे अगर हमको बेटर मिला है तो इसका कंपैरेटिव स्टडी, और साथ में जो है एक तो कंपैरेटिव स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा जो है सम इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द डेटा ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग. सो डिस्कशंस में वो सभी चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डिस्कशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डिस्कशन वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमको क्या समझ में आ रहा है रिसर्च के बारे में, हमने कितना अच्छे से रिसर्च किया है, और वो रिजल्ट्स को हम कैसे अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके इन डेप्थ एनालिसिस हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्कशंस में दिख जाता है. डिस्कशंस में आने के बाद फिर हम जो है कंक्लूजन्स बताते हैं. कंक्लूजन या कंक्लूजन्स बताएंगे, डिपेंड्स. अगर एक ही कंक्लूजन है तो एक ही लिखेंगे, जनरली मोर देन वन कंक्लूजन हम बताते हैं. ठीक. और कंक्लूजन्स बताने के बाद फिर फ्यूचर स्कोप के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. एक स्टैंडर्ड आउटलाइन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी को फॉलो करना है, बट एक बेसिक आउटलाइन है, ऐसा जनरली ऐसा फॉलो किया जाता है. और लास्ट में जो है वो बिब्लियोग्राफी वाला पार्ट आता है, जैसे इस रेफरेंसेस जिसको बोलेंगे, रेफरेंसेस वाला पार्ट आएगा. उस रेफरेंसेस वाले पार्ट को जो लिटरेचर सर्वे में आपने बताया था उस सभी रेफरेंसेस में होने चाहिए. तो रेफरेंसेस वाला पार्ट आपका जो है वो दैट सपोर्ट्स द लिटरेचर सर्वे, एंड दिस इज द वेरी बेसिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंटायर थीसिस इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट. बाकी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, डेफिनेटली द चेंजेस कैन बी देयर, बट दिस इज अ वेरी बेसिक आउटलाइन. सो ये इस तरह से आपको आउटलाइन बनाना है. उसके बाद फिर जैसे जैसे आपने आउटलाइन बनाया था वैसे वैसे आप जो है स्लाइड इंसर्ट करते जाएंगे. तो जैसे मैं यहाँ पे एक सैम्पल बता रहा हूँ. जैसे फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन. सो इट शुड बी वेरी इट शुड बी क्लियर कट.
कि आपने यहाँ पे 1 में इंट्रोडक्शन लिखा है, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में 1 लिख के आपको बाकी का जो पार्ट है, सो दिस कैन कंटिन्यू। से फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन आपका कंटिन्यू हो रहा है, आप कुछ और जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने यूज़ किए हैं अपने रिसर्च में, उनके बारे में इंट्रोडक्शन हम देते हैं जनरली। तो हमारा जो रिसर्च है, हमने रिसर्च में क्या किया है, उसका जो बेसिस है, उसका जो थियोरेटिकल बेसिस है, वो इंट्रोडक्शन में हमको देना पड़ता है। सो रिसर्च में जो अपन ने काम किया है, जो अपन ने प्रपोज मेथोडोलॉजी किया है, दिया है, जो अपन ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किया होगा, डिस्कशंस में हो सकता है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस जो है वो एनालिसिस किया हो, कंपैरिजंस किया हो, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं, उसका थियोरेटिकल बेसिस को बता देते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जो है कुछ फार्मूलाज वगैरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपने यूज़ किया हो अपने रिसर्च में, या तो जो मेथोडोलॉजीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके बारे में आपको थियोरेटिकल आपका बेसिस आपको इसमें बताना पड़ेगा। सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो है जनरली टेक्स्ट एंड इमेजेस मिक्स करके हम रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होने के बाद सोच लीजिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका थोड़ा बड़ा है, तो आप जैसे यहाँ पे मैं थर्ड स्लाइड को क्लिक करके रखा हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन द राइट, राइट क्लिकिंग द माउस, माउस बटन राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और ड्रैग करके मैं इसको नीचे ले आया हूँ और उसको रिलीज किया मैंने राइट क्लिक को। सो अभी मैंने क्या किया कि स्लाइड पे क्लिक करके रखे हैं, राइट क्लिक किया है, ड्रैग किया नीचे में, देखिए अंडरलाइन वाला एक अंडरलाइन जैसे आ गया है। उसके बाद फिर मैंने रिलीज किया राइट माउस क्लिक बटन, उसमें फिर पूछ रहा है मूव करना है कि कॉपी करना है, तो आई एम सिलेक्टिंग कॉपी, बिकॉज इंट्रोडक्शन तो वैसे का वैसे रहेगा, कंटेंट चेंज होने वाला है, ठीक। सो लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, कंटिन्यूड लिखेंगे, ठीक। सो कंटिन्यूड को आप जो है छोटे फॉन्ट में लिख सकते हैं, तो यू सिलेक्ट द वर्ड एंड रिड्यूस द फॉन्ट फ्रॉम हियर, ठीक। सो जनरली इस टाइप से हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशंस देते हैं अपने स्लाइड्स का। सो इंट्रोडक्शन जो है ये चल ही रहा है, सो इट इज कंटिन्यूड। सो द व्यूअर शुड नॉट गेट कंफ्यूज दैट फिर से इंट्रोडक्शन कहाँ से आ गया, तो इंट्रोडक्शन इज कंटिन्यूड। इस टाइप से फ्लो जो है आप अपने, ये जो प्रेजेंटेशन आउटलाइन है, ये फ्लो मेंटेन करके रखना है। ठीक, अब जैसे आप चाहें, से फॉर एग्जांपल आई हैव से रेफरेंसेस वाला पार्ट है, 9th स्लाइड है। सो एज्यूमिंग दैट वी हैव क्रिएटेड ऑल द स्लाइड्स, एक 9th स्लाइड में बना रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट द स्लाइड हियर। This is my, say for example, this is my 9th slide, which is references. सर आपने बताया था रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में कोई डिफरेंस होता है, क्या हाँ, डिफरेंस होता है? जनरली रेफरेंसेस जो है वो एक देखा जाए तो दोनों सिमिलर है, दोनों का पर्पस भी सेम होता है, ठीक है ना, दोनों का पर्पस भी सेम होता है, तो लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। सो Okay. दोनों का पर्पस तो सेम है, साइटेशन स्टाइल्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, रेफरेंसेस जो होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोच लीजिए आई हैव यूज्ड से 20 रेफरेंसेस साइटेशंस इन माय टेक्स्ट, 20 साइटेशंस, तो एग्जैक्टली 20 रेफरेंसेस मेरे रेफरेंसेस वाले सेक्शन में होना चाहिए, ठीक। लेकिन बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि हमने जो प्रैक्टिकली कुछ और भी कुछ रीड किया हो, जिसका हेल्प लेके हम कुछ कंक्लूजन्स तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे जो है टेक्स्ट में नहीं है, ठीक। सो बेसिकली क्या होता है, साइटेशन का क्या मतलब है कि जहां से हमने इंस्पायर होकर टेक्स्ट उठाया है, उस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जर्नल के अंदर से कि एक जर्नल पेपर में मुझे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पसंद आया, मेरे रिसर्च के हिसाब से बहुत ही अप्रोप्रिएट मुझे लगा, तो आई हैव पिक्ड अप दैट पैराग्राफ एंड यूज्ड इट इन माय लिटरेचर सर्वे। अब जो पैराग्राफ मैं पिकअप करके लाया हूँ, वो जो है अपने लिटरेचर सर्वे में जैसे मैं यूज करूंगा, तो वो आप रेफरेंसेस में डालेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझने के लिए सोच लीजिए मैंने कुछ बुक्स रेफर किए, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझने के लिए
मैंने कुछ बुक्स रेफर किए और वो बुक्स से मैं इंस्पायर होके मैंने बहुत अच्छे से उस पैराग्राफ को समझाया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट बुक दैट आई हैव लर्न फ्रॉम इट। तो मैं उसको बिब्लियोग्राफी में डालूंगा। तो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि वो बुक का मैं रेफरेंस, मैं बुक का नेम दे रहा हूँ, उसका डिटेल बता रहा हूँ। तो वो स्टाइल सेम होता है, जैसे रेफरेंस लिखते हैं वैसे ही उसमें बिब्लियोग्राफी में भी लिखेंगे। लेकिन उसमें जो मैं बुक का नाम लिख रहा हूँ वो मेरे कहीं पे भी, मेरे टेक्स्ट में कहीं पे भी वो है नहीं, रेफर्ड नहीं है, उसका साइटेशन कहीं पे भी नहीं है। लेकिन आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट बुक। उसका ऑथर का भी नाम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां से आप इंस्पायर होके समझे हैं। जैसे सोच लीजिए फजी लॉजिक के ऊपर आपने एक पैराग्राफ देखा, उसको आपको समझ में नहीं आया कि क्या है, तो आपने एक बुक रेफर किया फजी लॉजिक पे, उसको पढ़ा। उसके बाद फिर जब उस पैराग्राफ को आपने पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने अपने लिटरेचर सर्वे में उसको डाल दिया। तो लिटरेचर सर्वे में जब आप डालेंगे तो वो रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन जिस बुक से इंस्पायर होके जो पढ़ के आपको समझ में आया, वो बुक जो है आपका बिब्लियोग्राफी में आएगा। वो आपके टेक्स्ट में कहीं पे भी रेफर जो है आपने नहीं डाला उसका नाम। आपने उसको पढ़ा है लेकिन उसका नाम नहीं डाला, क्योंकि आपने लिटरेचर अपने अपने टेक्स्ट में उसको कहीं पे भी साइट नहीं किया है। तो साइटेशन जहां जहां पे आ रहे हैं उससे वो रेफरेंसेस बनते हैं। ओके। और अबव साइटेशंस मतलब बियॉन्ड साइटेशंस जो होता है ना, जो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, वो सब चीजें अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो रेफरेंस नहीं बन जाएगा, वो बिब्लियोग्राफी बन जाएगा। वो सेम चीज बिब्लियोग्राफी बन जाएगा अगर हम ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो टेक्स्ट में एग्जैक्टली साइटेड नहीं है, लेकिन हम इंस्पायर होकर हमने पढ़ा हुआ है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उसके बारे में भी जो है रीडर्स को बताना चाहते हैं कि आप ये बुक्स को भी रेफर करके देख सकते हैं। बहुत और से सर जनरल में रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी दोनों रहता है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। हाँ वही मैं, इसलिए ये बेसिक डिफरेंस है। लिखने का तरीका सेम है। लिटरेचर हम्म। आपका रेफरेंसेस में भी जो पॉइंट आप जो लिखते हैं 1 2 3 4 करके, या अल्फाबेटिकल एपीए फॉर्मेट IEEE फॉर्मेट सेम है। बिब्लियोग्राफी में भी सेम है, एपीए फॉर्मेट है, IEEE फॉर्मेट सेम, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन उनका दोनों का जो पर्पस है ना, मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे जैसा अभी मैंने बताया कि रेफरेंसेस में वो सब चीजें हम डालते हैं जो साइटेड है हमारे टेक्स्ट के अंदर, जो हमने टेक्स्ट में साइट किया हुआ है। और रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में हम वो सब चीजें भी और साथ में दे देते हैं। मतलब साइटेशन तो रहता ही है, साथ में वो भी एडिशनल चीजें देते हैं जिससे हमने नॉलेज गेन किया। और हम वी आर ग्रेटफुल दैट आई हैव गेन नॉलेज फ्रॉम दीज बुक्स, सो आई वांट टू पुट द बुक नेम इन माय टेक्स्ट लिटरेचर, इन माय एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक, ओके सर, थैंक तो यू वो सर। बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी का में जो कंटेंट होता है, सोच लीजिए 100 आपके आपने मेंशन किए, 100 वो है आपके क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन वाले जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, ये सब के नेम्स आपने अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स वगैरह जो भी स्टाइल है फॉलो करके आपने दिया है, 100 है। लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट में हो सकता है सिर्फ 20 ही साइटेशंस हैं, बाकी 80 जो है इंस्पायर्ड है। तो वो हो जाएगा बिब्लियोग्राफी। और रेफरेंसेस जो होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में, जैसे CSV2 में जनरली क्या होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इट स्ट्रेसेस ऑन रेफरेंसेस। आपको रेफरेंसेस जो सेक्शन बनाना पड़ता है, बिब्लियोग्राफी नहीं बना सकते। तो रेफरेंसेस बनाना, इसका मतलब अगर आपने साइटेशंस अगर 10 के दिए हैं तो सिर्फ रेफरेंसेस पे 10 ही पेपर रहेंगे जिनका साइटेशंस आपने दिया है, एडिशनल कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। थैंक यू सर। वेलकम। सो नाउ अभी मैं बता रहा था कि अब जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन आउटलाइन बना रहे हैं, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन देते हुए यू वांट टू स्किप और यू कैन टू वांट टू जंप डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर स्लाइड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट हाइपरलिंक्स इन अवर स्लाइड्स। सो सोच लीजिए कि मुझे प्रेजेंटेशन से डायरेक्टली मुझे जो है, या आउटलाइन से मुझे रेफरेंसेस में जाना है डायरेक्टली। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये हाइपरलिंक वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक, सो हाइपरलिंक वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो इट विल से दैट करंट फोल्डर, ब्राउज्ड पेजेस, रिसेंट फाइल, ये एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज बता रहा है। मतलब ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे जो है हाइपरलिंक बना सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली जंप टू ए पर्टिकुलर हाइपरलिंक, पर्टिकुलर फाइल से। कई बार क्या होता है कि हमको जो है एक पर्टिकुलर, से मैंने एक्सेल फाइल में
अपना कुछ रिसर्च का काम किया है, डेटा लेके मैंने कुछ मैनिपुलेशंस किए हैं, बट आई कुड नॉट पुट द एक्सेल फाइल इन माई प्रेजेंटेशन बिकॉज वो दिखेगा भी नहीं, अच्छे से भी नहीं दिखेगा और बहुत कम्बरसम हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, उसके एक हाइपरलिंक बना देंगे, और हाइपरलिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी हमारे पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनसाइड द डॉक्यूमेंट हमको जो है लिंक को कनेक्ट करना है। सो हियर वी हैव द ऑप्शन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑल द स्लाइड्स आर देयर। ठीक, तो स्लाइड्स में ऑब्जर्व करेंगे कि स्लाइड टाइटल्स देखिए, टाइटल ऑफ पीएचडी वर्क, प्रेजेंटेशन आउटलाइन, ये सब स्लाइड नंबर्स हैं। सो इसलिए स्लाइड नंबर 5 में मेरे को जाना है, दैट इज द रेफरेंस वाला स्लाइड पे मुझे जंप करना है। सो मैं इसको ओके कर दूंगा। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस स्लाइड, दिस इज रेफरेंसेस स्लाइड, एंड आई एम क्लिकिंग ओके। ठीक, अभी देखिए कि इसका कलर चेंज हो गया है। सो आप जैसे इसको आप प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे, अब यहाँ पे रेफरेंसेस पे जैसे ही जाएंगे देखिए कि एक हैंड का सिंबल बन रहा है, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ लिंक। इसको क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली कम टू द रेफरेंसेस। ठीक, ठीक, तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक और चीज, अब जैसे हम अब सेम ऑपरेशन हमको फिर से करना पड़ेगा, क्यों कि रेफरेंसेस में आने के बाद वापस मुझे होम स्लाइड में जाना है। तो होम स्लाइड में अगर मुझे जाना है तो आई नीड सम लिंक, डायरेक्टली जंप करके जहां से मैं आया था वहीं पे वापस जाए, जैसे प्रेजेंटेशन आउटलाइन में डायरेक्ट मुझे जंप करके वापस जाना है। तो उसके लिए हम सेम आइडिया यूज करेंगे यहाँ पे, कि आप एक जो है छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बना लें। सो यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं शेप्स, एंड आई एम इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स हियर। सो मैं कॉर्नर पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे आई एम राइटिंग द टेक्स्ट जैसे होम करके, होम या प्रेजेंटेशन आउटलाइन या आउटलाइन या होम, होम कर देते ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये होम करके हमने बना लिया। अब होम को हम डबल क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेम ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू हाइपरलिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल ऑफ द पीएचडी वर्क या प्रेजेंटेशन आउटलाइन, हमको प्रेजेंटेशन आउटलाइन में जाना है, उसको ओके कर देंगे। ठीक है, सो अब फिर से मैं इसको स्लाइड शो को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ प्रेजेंटेशन आउटलाइन पे जाके, ये मेरा प्रेजेंटेशन आउटलाइन आ गया। रेफरेंसेस पे मैंने क्लिक किया, मैंने रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। फिर ये होम वाला कनेक्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे वापस हम प्रेजेंटेशन आउटलाइन में आ जाएंगे। सो इस टाइप से आप यू कैन क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन वेरियस स्लाइड्स। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप कनेक्शंस क्रिएट करते हैं तो एक रिटर्न बैक करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे होम करके रेफरेंस हाइपरलिंक बनाया है, सो दैट हाइपरलिंक शुड बी देयर इन द स्लाइड। ऐसा नहीं होना चाहिए हम जैसे 9th स्लाइड में पहुंच गए, उसके बाद अचानक से फिर मुझे वापस जाना है, तो आई एम स्क्रोलिंग बैक, एक एक करके जो है एरो मार्क प्रेस करके, वो एरो की को प्रेस कर करके वापस जा रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ मैनेजिंग द स्लाइड्स। इसको आप यूज कर सकते हैं, आइडिया आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें, जैसे यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया इसका, इसको आप जो है यू कैन इसका मैं जो है आई डोंट वांट दैट इट शुड बी ब्लू कलर, इट शुड बी ब्लैक कलर, क्योंकि जनरली ब्लैक कलर पे ही रहता है, तो ब्लैक एंड वाइट में ही बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक है जरूर, लेकिन ब्लैक कलर में दिख रहा है। ये अगर प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वी गो टू द रेफरेंस। ठीक, सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी हैव टू डू। ये थोड़ा सा हमको जो है सोच समझ के करना पड़ेगा। सर लेकिन एक पर्टिकुलर चीज है, हाँ जैसे हमें तो पता नहीं कि हमारी आरडीसी में वो हमसे कौन सा पॉइंट डिस्कस करने के लिए अचानक से पूछ ले, मान लीजिए वो हाँ हाँ डाटा ही पूछ ले कि हाँ डाटा के बारे में बता दो, तो हाँ अब हाँ फिर हम इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि सर कि मतलब हम हर किसी का हाइपरलिंक बना के रखें। हाँ, मतलब देखिए वो जरूरत पड़ने पे आप बनाइएगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि नहीं इसको बनाना हाइपरलिंक बना चाहिए के कि नहीं रखना है। बनाना चाहिए सबका। नहीं नहीं, ये जरूरी, जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा,
तो आप अगर जैसे डेटा को मुझे दिखाना है तो मुझे एक एक्सेल फाइल खोल के दिखाना पड़ेगा कि मैंने एक्सेल फाइल में अपने डेटा पे वर्क किया है। ठीक है, तो मेरे को एक हाइपरलिंक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। या तो आप टेक्स्ट के अंदर में कहीं पे हाइपरलिंक बनाइए जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे लेट अस सी द डेटा। ठीक, तो यहाँ पे आपने इसको बनाया तो इसको आप हाइपरलिंक बना देंगे और एक एक जो है एक्सेल फाइल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। ये सही है सर, क्योंकि कभी हाँ वो कोई भी पॉइंट पूछेगा तो कम से कम हाँ, हमको जो है उसके बिल्कुल उसी बिल्कुल स्लाइड पे रहते हुए हम जा सकते हैं, बिल्कुल, हंड्रेड उस स्लाइड परसेंट के बारे में पूछ लेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल 100%। वही वही पर्पस है एक्चुअली, इस एक्टिविटी का वही पर्पस है। जैसे हाँ मैं एक एक्सेल फाइल एक बार एक एक छोटा सा एक एग्जांपल अटैच बता करके देता दिखा दीजिए सर, हूँ। हाँ, कैसे वही छोटा अटैच सा होगा। एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक, अभी कुछ हम लोग ने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अपन ने लास्ट टाइम में हमने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट वगैरह यूज करके मेंडले में ऐड किया था। वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मेरा पड़ा हुआ है, उसी को हम इसमें यूज कर लेते हैं। सो से दिस इज द स्लाइड, यहाँ पे लेट अस सी द डेटा में आपको हाइपरलिंक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आप पूरे ही सेंटेंस को कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर वर्ड पे भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है और आपको ठीक लगता है आपके हिसाब से। सो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, देन विल गो टू द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जाने के बाद एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसको क्लिक करेंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हमको बताएगा कि आप जो है कौन से ड्राइव में से उसको अपलोड करवाना चाहते हैं। तो माई कंटेंट्स आर इन ई ड्राइव डाउनलोड्स, सो हियर से से एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एक सर मिनट। एक्सेल फाइल करिए, ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा एक्सेल वीक है। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। जैसे एक्सेल फाइल को भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे क्लास 2 एफ फाइनल डॉट एक्सएलएस फाइल है, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर डेटा फाइल। इसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने, यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है कहाँ पे है, ये ई ड्राइव डाउनलोड्स क्लास 2 टू एफ फाइनल एक्सएलएस फाइल है। इसको ओके कर देंगे। ठीक, ओके करने के बाद अब इसको प्रेजेंटेशन जब मैं ऑन करूंगा, अब लेट अस सी द डेटा पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए उस पे जाते ही वो बता रहा है कि इट इज एक्सएलएस फाइल। इसको क्लिक करेंगे तो द एक्सेल फाइल हैज ओपन नाउ। ठीक है, अभी एक सेकंड ना, आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड। आई विल शेयर द विंडो फर्स्ट, शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। एक सेकंड ना, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक, सो यहाँ पे जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, अपना स्लाइड शो में अपन आ गए हैं। यहाँ पे लेट अस सी द डेटा पे हम जैसे क्लिक करेंगे, ठीक, तो ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये दिख रहा है। ठीक, सो इस टाइप से जो है आप अपने हाइपरलिंक्स बना के यू कैन शो द डेटा। ठीक, आप ऐसे क्लोज करेंगे, वापस आप उसी स्लाइड में रहेंगे जिस स्लाइड में आपने इसको क्लिक किया था। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी यूजफुल एक्टिविटीज दैट यू विल बी डूइंग। ठीक है, होपफुली आइडिया लगा होगा सबको। अभी तक जो डिस्कशन हुआ इट इज क्लियर होपफुली। इसमें किसी को कोई डाउट हाँ है कि अभी तक जो डिस्कशन हुआ है? नो सर। नो सर। नो सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो अभी अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं।